الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو. حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو. اللہ دیدے گنبدے خضرا نصیب ہو. یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو. کعبے کے جلووں سے دل مستر ہو کاش شاد، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من قال صلی اللہ علی محمد فتح علی نفسہ 70 بابا. آقا فرماتے جو کہے صلی اللہ علی محمد، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے. آقا فرماتے ہیں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا. یعنی سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی برکت سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. اور یہ جو خاص درود پاک ہے اس کو بار بار کثرت سے پڑھتے رہا کریں. آئیے ایک بار پڑھ بھی لیں تاکہ عادت بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے. اب تو مبارک سفر پر جا رہے ہیں، اس سفر میں کثرت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس درود پاک کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں، کثرت سے پڑھتے چلے جائیں. اللہ کرے کہ ہمارے درمیان محبتیں بڑھتی چلی جائیں اور آپس کی جھگڑے سے، آپس کی دوریوں سے بھی ہم انشاءاللہ بچے رہیں. اور سبحان اللہ، اس مبارک سفر میں درود پاک نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے اس پورے سفر میں اے حاجیوں درود پاک کو تھام کے رکھنا ہے. ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں اور جیسے ہی سفر شروع ہو تو سبحان اللہ اب اس کا ورد بڑھا دینا ہے. جتنا پڑھتے جائیں گے اس کی برکتیں ملتی چلی جائیں گی. اللہ اکبر. آپ اس سفر پر جا رہے ہیں جو عام سفر نہیں ہے. حج کا سفر یہ مغفرت کا سفر ہے. حج کا سفر یہ اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کا سفر ہے. دنیا کے بہت سارے سفر آپ نے کیے ہوں گے اور لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر خدا کی قسم حج کا سفر نرالا ہے. اس سفر میں مغفرت کا وعدہ ہے، اس سفر میں رحمتوں کے برسنے کا وعدہ ہے. اس سفر میں کیسی کیسی بشارتیں ہیں. آئیے جو جا رہے ہیں ان کے ذوق میں اضافہ ہو جائے، اور جو نہیں جا رہے یا جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ مزید اپنے شوق کو بڑھائیں. اس نیت سے پہلے حج کے کچھ فضائل سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حج کے 2 حروف ہیں، ہا اور جیم. ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ یہ کہتا ہے اے میرے رب، میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں. اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اللہ اکبر. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسافر حاجی نہیں ہوتا، ہر پہاڑ کا نام عرفات نہیں ہوتا، ہر بیت کا نام بیت اللہ نہیں ہوتا، نہ اور نہ ہی ہر زادے راہ منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ دنیا کے سفر سے ایک ہٹ کر سفر ہے. یہ مغفرت لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور رحمت والے رحمان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. کیسی کیسی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو.
आए हाय, यानी सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। मगर ए हाजियों, ये कंडीशन याद रखना कि हज करना है मगर उसमें बुरी बातें नहीं करनी, फौश कलामी नहीं करनी और गुनाह नहीं करना। तो हमें हज के इस सफर में अपनी बुरी आदतों को छोड़कर बल्कि सच्ची तौबा करके जाना है। ऐसा ना हो कि हज पर भी जाएं और वहां लड़ाई झगड़े भी हो रहे हों, वहां गुनाह भी हो रहे हों और बाद अल्लाह बुरी बातें भी हो रही हों, और जो इतना बड़ा अजर मिलने वाला है उससे हम महरूम ना रह जाएं। संभल कर पांव रखना हाजियों शहरे मक्का में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो इस सफर को इंशाअल्लाह बड़ी बरकतों के साथ गुजारना है। सुभान अल्लाह, मनकूल है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बैतुल्लाह से वादा फरमाया, अल्लाह ने काबे से वादा फरमाया कि हर साल 6 लाख अफराद उसका हज करेंगे, यानी कम से कम 6 लाख अफराद उसका हज करेंगे। और अगर कम होंगे किसी साल तो अल्लाह करीम उस कमी को फरिश्तों के जरिए पूरी फरमा देगा। और बरोज़े क़यामत काबाए मुशर्रफा पहली रात की दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका हज किया वो इसके पर्दों के साथ लिटके हुए होंगे और उसके गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे, यहाँ तक कि ये जन्नत में दाखिल होगा तो ये काबे का हज करने वाले भी उसके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ए हाजियों, आपको मुबारक हो। ए काबा का तवाफ करने वालों, आपको मुबारक हो कि इंशाअल्लाह काबा अपने साथ जन्नत में हम सबको लेकर जाएगा। और सुभान अल्लाह, मक्का पाक की हाजिरी, काबा शरीफ की हाजिरी कितनी मुबारक है कि काबे को देखते रहे तो भी बरकतें हैं, तवाफ करें तो भी रहमतें छमाछम बरसती हैं। हदीस पाक में आता है हर रात अल्लाह करीम अहले जमीन की तरफ नजर फरमाता है और सबसे पहले अहले हरम की तरफ नजर फरमाता है, और अहले हरम में सबसे पहले मस्जिदुल हराम वालों पर नजर फरमाता है। फिर जिसको तवाफ करते हुए पाता है उसे बख्श देता है, जिसे नमाज में मशगूल पाता है उसकी भी मगफिरत फरमा देता है, और जिसे काबे की तरफ रुख किए हुए पाता है उसे भी मुआफ फरमा देता है। यानी काबे का दीदार भी कमाल है। ऐ मेरे हाजियों, आपने खूब अपना वक्त जो है वो मस्जिदुल हराम में गुजारना है। मक्का पाक में जब तक रहें, जितना हो सके मस्जिदुल हराम में वक्त गुजारें, और जब मदीना मुनव्वरा की हाजिरी हो जितना वक्त हो वो मस्जिद नबवी में गुजारें। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सैयदुल मुबल्लिगीन जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, उस बैतुल्लाह शरीफ पर हर दिन 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 काबा शरीफ को देखने वालों के लिए नाजिल होती हैं। यानी काबे का दीदार भी कर रहे हैं तो आप पर रहमतें बरस रही हैं। मगर करना यह है कि हमने खूब तवाफ करने हैं। याद रखिएगा, अपने वतन में आप बहुत सारी इबादतें कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, मगर याद रहे तवाफ कहीं और नहीं कर सकते। काबा सिर्फ मक्का मुकर्रमा में है। तो जब मक्का पाक जाएं तो अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए, अहम तरीन आपका जज्बा ये होना चाहिए कि मैंने ज्यादा से ज्यादा तवाफ करने हैं। और ये तो आजाद घर है। जी हाँ, काबे को बैतुल्लाह को अतीक भी कहा जाता है। और इसको क्यों कहा जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसे जमीन से 2000 साल पहले पैदा फरमाया और इसको जालिम और जाबिर लोगों के कब्जे से आजाद रखा और उस पर किसी जालिम और जाबिर को मुसल्लत न किया। जिसने भी बुरा इरादा किया काबे के बारे में वो हलाक कर दिया गया। हजरत अबू बकर वासिती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इसको अतीक कहने की यानी आजाद कहने की एक वजह यह भी है कि जिसने भी इसका तवाफ किया वो जहन्नम से आजाद हो गया। अच्छा, एक बड़ी मुबारक हस्ती भी है जिनको अतीक कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसलमानों के जो पहले खलीफा हैं। फरमाया उलमा ने, जो शख्स नमाज में किबले की तरफ रुख ना करे उसकी नमाज कबूल नहीं, और जो अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलायत की गवाही ना दे उसकी ज़कात कबूल नहीं। तो ये मर्तबा सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और कमाल की बात, सुभान अल्लाह, ए हाजियों आपको मुबारक हो। ये सफर आप वैसे ही नहीं कर रहे। कुछ लोग समझते हैं मेरे पास पैसे आ गए, फलां बीसी खुल गई, फलां जनाब मेरा
प्लॉट बिक गया और जनाब ये पैसे जमा हो गए तो मैं हज पर जा रहा हूँ। नहीं जनाब, ये सफर पैसों से नहीं, ये सफर दुनिया के असबाब से नहीं, ये अल्लाह की रहमत से होता है। जिसको चुना जाता है, जिसे सेलेक्ट किया जाता है, जिसको बुलाया जाता है, बल्कि मुझे कहने दीजिए जिसको सेलेक्ट कर लिया गया है, जिसको चुन लिया गया है, ये उसका सफर होता है। सुनिए, बड़ी कमाल की रिवायत है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब काबा शरीफ की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, तो अब आपको तामीर काबा के बाद ये इरशाद फरमाया गया रब ताला की तरफ से कि ऐ इब्राहिम, अब तुम लोगों को हज के लिए बुलाओ, हज के लिए ऐलान करो। अब जरा सोचें, उस वक्त मक्का पाक में आबादी नहीं थी और आज तो सैटेलाइट का जमाना है। उस जमाने में कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई माइक सिस्टम नहीं था, और आपको हुक्म किया दिया गया कि लोगों को हज के लिए बुलाएं। आपने मौला करीम की बारगाह में अर्ज की, हजरत इब्राहिम अर्ज करते हैं, मौला मैं हज के लिए बुलाऊं, आवाज कैसे जाएगी लोगों को? अल्लाह अकबर। इरशाद हुआ, ऐ इब्राहिम तेरा काम निदा करना है, पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए और आपने लोगों को बुलाया, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे रब अज़्ज़ व जल ने घर बनाया और तुम्हें उसका हज करने का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। ये आवाज कहां कहां सुनी गई? ये कैसा रूहानी सैटेलाइट था? जरा सुनिए, अल्लाह करीम ने ये आवाज सब जमीन वालों को आपकी आवाज सुनाई, तो जिन्नों, इंसानों, पत्थर और मिट्टी के ढेलों, पहाड़ों, रेतीले मैदानों और हर खुश्क तर ने जवाब दिया। मशरिको मगरिब वालों को आवाज पहुंचाई तो माँ के पेटों में जो औलाद मौजूद थी और वालिद के पुश्तों में जो औलाद मौजूद थी, उन सब ने ये कहते हुए जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब अगला जुमला सुनिए, उलमा फरमाते हैं, आज वही शख्स हज करेगा जिसने उस दिन जवाब दिया था। यानी अगर किसी की रूह ने उस वक्त जवाब दिया था और एक बार लब्बैक कहा था तो वो एक बार हज करेगा। 2 मर्तबा उस वक्त लब्बैक कहा था तो 2 बार हज करेगा। जिसने जितनी बार लब्बैक कहा था वो उतनी बार हज करेगा। ए हाजियों, आपको मुबारक हो जो हज कर चुके और जो हज पर जा रहे हैं। अल्लाह आपको खैर से हज नसीब फरमाए। इसका मतलब ये हुआ, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस पुकार पर हमारी रूह ने लब्बैक कहा था। ए रब्बे करीम, हमें बार बार हज की सआदत नसीब फरमा और हमें हज मकबूल भी नसीब फरमा।